basically, what is nutrition? Nutrition is process of obtaining food necessary for health and growth. जो हम लोग खाते हैं उसी से हमको जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज न्यूट्रिशन। मगर वो सिर्फ खाना ही पूरा नहीं होता, तो हमारी बॉडी किस तरह से उसे इस्तेमाल करती है और हमारे बॉडी में उसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। जैसे कि आप किस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन है, या इवन आपकी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ती है, आपको कोई बीमारी नहीं होती, इसके लिए भी जरूरी होता है कि आप अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए या आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। First of all, thank you everyone for joining in. Before starting, firstly, I'll give a brief introduction of what we are building and what 100% is. We are a community-driven platform. We are building a virtual fitness and travel experience. So this is a product which will help you keep a track of your fitness journey. It involves virtual challenges. We have recently launched a new feature for leaderboard, which will keep a track of where you are amongst other peers. And for this session, we have Kunda Mahajan, ma'am, with us. A brief introduction about her. She has completed her master's in food and science and nutrition and postgraduate diploma in sports science and nutrition from Department of PG Studies and Research in Home Science from Juhu, Mumbai. She has a teaching experience of over 20 years and is currently a professor at SSPH College of HMCT Nashik. And she is also a president of Khel Rang, which is a fitness and science association at Nashik. Also, she's working as a consulting nutritionist. She has consulted many national and international sports players. So with this, I welcome Kunda ma'am for the session which we have. And I am sure we have a lot more to learn and it will be beneficial for all of us. We have a WhatsApp community which is very active right now. We have around 80 to 100 members currently, and people actively post their fitness stats and people are very engaging over there. So you all can join our WhatsApp community. We have also app on Play Store. You can search 100 Ascent, and I'll also paste the link so you can directly download. Yes, ma'am, over to you. Thank you. It is indeed a pleasure to be with all of those who are fitness enthusiasts and want to know a little bit more about diet, something which is very close to my heart. And today, the topic given to me was to talk something about nutrition and the types of diet. In our society, we are seeing so many people following different diets, and every few days we come to hear about something new. And at that time, we realized that it's not something that was useful to one person, then somebody else will come up with some new ideas. And just to briefly tell you as to what are the pros and cons of each diet, I'll be taking you through this whole journey. But to start off, we'll start off with some basics of nutrition. I'm sure most of you all know since you all are from the fitness background, but let's go through it. So today's my topic is ABC of nutrition and types of diet. So whenever we are talking about types of diet, what is most important is to know what exactly suits you and what not. So we'll just start off. So a basic definition कि what is nutrition, हम लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि ये पोषण शास्त्र क्या है। सबको पता है कि न्यूट्रिशन में क्या लेना है, कोई कुछ खाने को बोलता है, कुछ और बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। जो हम लोग खाते हैं उसी से हमको जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज न्यूट्रिशन। मगर वो सिर्फ खाना ही पूरा नहीं होता, तो हमारी बॉडी किस तरह से उसे इस्तेमाल करती है और हमारे बॉडी में
उसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि आप किस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन है, या इवन आपकी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ती है, आपको कोई बीमारी नहीं होती, इसके लिए भी जरूरी होता है कि आप अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए या आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। जो हमारे इंडियन डाइट में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स दूसरी चीज होती है जो हमें तेल घी इसमें से तो मिलते हैं, मगर बाकी की जो चीजें है उसमें से हमें जो मिलते हैं वो होते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी, जैसे कि सीड्स है, ऑयल सीड्स है, पंकिन सीड्स है, एवोकाडो है, इनमें सबसे मिलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमें दो चीजों से मिलते हैं, एक एनिमल सोर्स होता है, एक दूसरा प्रोटीन सोर्स होता है। एनिमल सोर्स तो आपको सबको पता है, दूध है, दही, पनीर है, या तो फिर नॉनवेज खाते हैं तो अंडे है या नॉनवेज है। मगर वेजिटेरियन सोर्सेज जब हम लोग कहते हैं तो वो दाल होती है, या तो फिर बाकी के अंकुरित जो कोई बीज होते हैं उनमें से मिलते हैं, या तो फिर कोई ड्राई फ्रूट्स है उनमें से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। फाइबर एक चीज है कि जिनको तकलीफ होती है उनको पता है कि उनको फाइबर की जरूरत है, मगर फाइबर ऐसी चीज होती है कि जो आपका पेट साफ रखने में बहुत जरूरी होता है, ना कि सिर्फ पेट साफ रखने में जरूरी होता है, मगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, शुगर कंट्रोल करने में भी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेशन यानी कि पानी पीना, हम लोग बहुत बार सुनते हैं कोई 3 लीटर पीने को कहता है, कोई 4 लीटर पीने को कहता है, मगर ये अलग अलग हर एक की जरूरत के हिसाब से पानी की जरूरतें होती है। मगर हमारी बॉडी अगर आप देखते हैं तो 70% हमारी बॉडी पानी से बनी होती है, तो अगर पानी कम होता है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। वाइटामिन, डिफरेंट वाइटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए हुआ, बी कॉम्प्लेक्स है, सी है, डी, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, सभी विटामिन्स की जरूरत हमें होती है अलग अलग फंक्शंस के लिए, और हर एक विटामिन हमें उतना ही जरूरी होता है जितना कि बाकी की चीजें हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ विटामिन डी लिया या विटामिन ए लिया या विटामिन सी लिया तो काफी है। जैसे कि आजकल अभी बीच में कोरोना में सब लोग सिर्फ विटामिन सी ले रहे थे, दैट वाज नॉट इनफ, उसके साथ बाकी के लेना इतना ही जरूरी था। मिनरल्स, जैसे कि हम लोग मिनरल्स कहते हैं, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, इनकी भी हमारे बॉडी में एक एक विशेष कार्य होता है, और वहां वहां पे उन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी। कम ज्यादा होने पे हमें उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि आपको कैल्शियम कम हो गया तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या तो फिर अगर आयरन कम है तो अनीमिया हो सकता है। सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर, these are the basic nutrients in food which are necessary for everybody. Now, once you know the basic nutrients, it's important to know what happens to our body when we consume these nutrients. Now, um, what are the factors which affect the requirements of these nutrients? हमें सबको पता है कि कैलोरीज हमें लगती है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं 2000 कैलोरीज लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने 500 कैलोरीज खा लिए, कम खा लिए, ज्यादा खा लिए, मगर कैलोरीज हर एक आदमी को एक तरीके नहीं लगते। हर एक की कैलोरीज उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होते हैं, उनको जरूरत जैसे लगती है उस हिसाब से। सबसे पहला होता है टाइप ऑफ एक्टिविटी, आप किस तरह की एक्टिविटी करते हो। आप एरोबिक एक्टिविटी करते हो, यानी जहाँ पे आप कार्डियो ज्यादा कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, मैराथन कर रहे हो, तो वॉकिंग हो रहा है, फास्ट वॉकिंग हो रहा है, तो वो एरोबिक एक्टिविटी हो। अगर आपके अनएरोबिक एक्टिविटी है कि जहाँ पे आप लिफ्टिंग कर रहे हो, तो फिर वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती है। सिर्फ एनर्जी नहीं मगर बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग किस्म आपको लगते हैं। दूसरा होता है जेंडर, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, दैट इज बिकॉज देयर इज अ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस इन द बॉडी।
If you see, the females are predominantly adipose tissues they have, whereas the males have got more of the musculature or muscle tissues are more in the males. So you will see the rate at which the energy is utilized by them is also different. So the requirements of energy and the nutrients also varies. Next is weight. आपके वेट के हिसाब से भी आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है. So whether you're thin, whether you're obese, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी, आपके बाकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी अलग होंगे. हाइट, आपकी हाइट के हिसाब से हम लोग हमेशा कहते हैं कि जितने सेंटीमीटर्स है उसमें से आप 100 निकाल दो, फिर आपका जो फिगर रहेगा उतना आपका वेट होना चाहिए. तो दैट इज अ वेट कैटेगरी. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हाइट, अकॉर्डिंग टू द हाइट we calculate your BMI, and for that BMI calculations, height and weight are important. So the next factor which is very important is body mass index or your BMI. This is calculated upon your weight upon height square in centimeters and kgs. नेक्स्ट इज द एक्टिविटी स्टेज. आपके एक्टिविटी की स्टेज कौन सी है? क्या आप बिगिनर है, क्या आप एडवांस्ड कर रहे हैं, कितना आप, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जिस तरह से आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, आपकी बॉडी उस तरह से उसको अडेप्ट करती है. और वंस अडेप्टेड, योर बॉडी will not derive the benefit from that exercise and the nutrients that you're taking. So you have to go and work on it. Time of the day, आप किस समय एक्सरसाइज कर रहे हो? सुबह का वक्त है, रात का वक्त है. आजकल तो 24 आवर्स जिम्स चालू है. कहीं पे होता है लोग को सुबह वक्त नहीं मिलता, वो शाम को करते हैं, कुछ लोग 10 के बाद भी करते हैं. सो व्हाट टाइम ऑफ द डे यू आर वर्किंग, तो उस हिसाब से भी आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. So your requirements are going to change with all these different factors, and they're not only the energy requirements but for everywhere. Now this is an example of telling you that how the energy metabolism is being affected. Like in the fed stage, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, आप खाना खाने के बाद तुरंत देखते हो कि अगर आपने ग्लूकोज टेस्ट करवाया है, पीपी करवाया है, तो आपको पता है कि 2 घंटे के बाद आप फिर से ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए जाते हो. एक फास्टिंग करते हैं और एक पीपी करते हैं. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस खाने को पूरी तरह से हमारे बॉडी डाइजेस्ट करती है, और फिर वो खाने को कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे प्रोटीन से, उनका सबका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है. और ये ग्लूकोज फिर अपने खून में से अलग अलग जगह पे जाना शुरू होता है. जब अतिरिक्त ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की तहत स्टोर किया जाता है. And where is this glycogen stored? So it is stored in your liver and in your muscles. तो आपके muscles में और liver में ये glycogen stored है. जब भी आपको जरूरत होती है तो तुरंत एनर्जी आपको ब्लड ग्लूकोज से मिलती है या तो ग्लाइकोजन से. मगर आपने अगर कुछ ज्यादा खा लिया, आपके एक्टिविटी के हिसाब से ज्यादा है, तो फिर उसका कन्वर्जन फैट में हो जाता है. और यही फैट है जिसको हम लोग सब कंट्रोल करने के कोशिश में है. अभी ये दिस इज अ फास्टेड स्टेट. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ फास्टेड स्टेट? फास्टेड स्टेट जब, यानी कि जब आप खाना नहीं खा रहे हो. फास्टिंग डज नॉट मीन कि आपने उपवास रखा है या व्रत रखा है, और यू आर नॉट ईटिंग एट दैट टाइम. द टाइम पीरियड व्हिच इज बिटवीन 2 meals, what happens when the body requires energy? It is obtained from the glucose that is there. Then the second source is the glycogen. मगर जब आप लॉन्ग टाइम फास्ट करते हो, अगर आपका व्रत है, आपने कुछ भी नहीं खाया, या तो फिर आपका ये हो गया कि आपके मील्स मिस हो गया, या ऐसे कुछ भी कारण हो जाता है, या तो हम लोग रात को जल्दी खाना खा के सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उस वक्त में क्या होता रहता है कि आपकी बॉडी एनर्जी के लिए, अगर आपने कम खाया है तो ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फिर एनर्जी कहाँ से आती है? फिर एनर्जी आती है फैट टिश्यूज से. ये हम लोग देख सकते हैं इवन जब हम लोग फास्टिंग करते हैं या कीटोजेनिक डाइट लेते हैं, तब भी हम देखते हैं. तो व्हाट हैपेंस इन दीज केसेस इज द फैट
is sent to the liver. It converts the fat into ketone bodies, and these ketone bodies are then circulated in the blood. Your body can use ketone bodies. However, there are implications of being using that as a source of energy or not. Your brain predominantly requires glucose. So your body will start production of glucose through gluconeogenesis. हर बार आपकी जब ब्रेन को जरूरत होती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज तैयार होता है, मगर कीटोन बॉडी से भी ग्लूकोज तैयार होता है, फैट से भी ग्लूकोज तैयार होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. मगर ये होने के लिए कुछ अवधि चाहिए कि जब आपने कुछ खाया नहीं होता. सो दिस वाज जस्ट व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी. हमारे बॉडी में क्या होता है, आपको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत हो गया. अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइट्स. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत सारे किस्म के डाइट्स हैं, एंड हिस्ट्री में 100 साल से भी पुरानी डाइट के मेंशंस है कि हमने देखा है कि 18 समथिंग में फर्स्ट रेफरेंस ऑफ अ डाइट, स्पेसिफिक डाइट कोई ले रहा था, इस तरह का मेंशन है. बट दीज आर द कॉमन डाइट्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय पीपल. कीटो है, पेलियो है, वेजिटेरियन डाइट है, वीगन डाइट है, मेडिटेरियन है, रॉ है, लो कार्ब, नो शुगर. ये सारे कॉमन डाइट्स है जो हम लोग, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. बट बिफोर I go, if you have any questions, please put up in your chat box so I can answer them at the end of it. Okay, the next first topic that we are going to talk on low carb diet. आजकल बहुत लोग हैं कि जो लो कार्ब डाइट्स लेते हैं. पहले ऐसे होता था कि जब डीन ऑर्निश आए थे तब उन्होंने कहा था कि लो फैट लीजिए, तो पहले होता था कि फैट्स कम करो, फैट्स कम करो. आजकल ये ट्रेंड है कि सभी लोग लो कार्ब्स लेते हैं. सो व्हाट आर लो कार्ब्स? लो कार्ब्स में भी बहुत किस्म के डाइट्स होते हैं. जैसे कि एक टिपिकल लो कार्ब डाइट है, कीटो डाइट है, लो कार्ब हाई फैट डाइट होता है, एटकिंस डाइट है, इको एटकिंस डाइट है, डुकान डाइट है, या जीरो कार्ब डाइट. ये सारे लो कार्ब डाइट्स होते हैं जिनमें आपकी जरूरत के हिसाब से, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली हम लोग 50% के ऊपर आपके कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आने चाहिए ऐसे कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम आते हैं. अगर हम देखते हैं कि एक टिपिकल लो कार्ब डाइट क्या है, तो एक टिपिकल लो कार्ब डाइट में क्या होता है कि उसका कोई डेफिनेशन नहीं है. आप आपकी जरूरत के हिसाब से कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए. यानी क्या कम करोगे, तो आप रोटीज, चावल, ये सब कम करते हैं इसमें, और इसमें राइस के साथ ही सारे रूट्स और ट्यूबर्स जैसे पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज है, ये भी सारी चीजें कम होती है. तो बेसिकली यही चीजें नहीं, मगर प्रोसेस्ड जो फूड्स है, शुगरी फूड्स है, शक्कर है, जैगरी है, ये गुड़ है, ये सारी चीजें कम की जाती है. और इनमें ज्यादातर मात्रा होती है वो प्रोटीन्स की होती है और फैट की होती है. कॉमनली अगर इंडियन डाइट लेते हैं तो हमारे डाइट में कम से कम 300 के ऊपर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं. 315 से 350 तक हम ला रहे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, या उससे भी ज्यादा होते हैं. मगर लो कार्ब डाइट में क्या होता है, अगर आपको सिर्फ आपका वेट कंट्रोल करना है तो आप डाइट कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 100 से 150 तक लेते हैं. कुछ लोगों को वेट लॉस करना है तो उससे कम लेते हैं कि 50 से 100 तक, और कुछ लोगों को एकदम से वेट कम करना है तो उससे कम लेते हैं. मगर ये सब चीजें करने से आपके बॉडी पे हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी कोई लो कार्ब डाइट लेते हो तो किसी के सलाह से लीजिए. कोई भी रजिस्टर्ड डाइटिशियन है या कोई जानकार व्यक्ति है उससे लीजिए, ना कि कोई जिसने 3 महीने का कोर्स किया है बता रहे हैं आपको ये मत खाओ, वो मत खाओ, जो आजकल बहुत चलता है. ये सबसे पॉपुलर डाइट है आजकल. कीटो डाइट बहुत कहा जाता है कीटो डाइट के बारे में. तो व्हाट इज एक्जैक्टली अ कीटो डाइट? अ कीटोजेनिक डाइट जो है वो सबसे पहले बनाया गया था
छोटे बच्चों में जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स है, जिनको एपिलेप्सी है या फिट्स आते हैं, उन बच्चों के लिए ये डाइट तैयार किया गया था। और बाद में ये पता चला कि ये डाइट लेने से वेट भी इफेक्ट होता है, और इसीलिए ये डाइट लोगों ने शुरू किया। ये डाइट जब लेना शुरू करते हैं तो इन डाइट्स में क्या होता है कि डाइट में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। करीब करीब 70 से 75% आपके डाइट में फैट्स ही होते हैं। तो और कार्ब्स बहुत कम हो जाते हैं, 5 से 10% तक। तो इतना कम आप कार्ब्स खा रहे हो, ज्यादातर आप फैट्स खाते हो। और इसमें क्या कहा जाता है कि आपका जो बॉडी में स्टोर्ड फैट्स है वो आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी, और इसकी वजह से आपका वेट कम होगा। दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड अ कीटोजेनिक डाइट। पीपल, मेनी famous personalities and players and athletes do use this keto diets, but they are using it for a specific period. उसमें भी कई किस्म के कीटो डाइट्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट, जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट इज व्हाट इज रेकमेंडेड कि 75% आप फैट्स ले लो, 20% प्रोटीन्स और 5% कार्ब्स ले लो। सो ये जो होता है ये टिपिकल एक, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और ये साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट इज द सेकंड टाइप। नाउ इन साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट जो होता है, इसमें ऐसे कहा जाता है कि 5 दिन तक आप कीटोजेनिक डाइट लो और फिर 2 दिन आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लो। सो उसमें क्या होता है कि 5 दिन तक आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाते और 2 दिन बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। इसकी भी आपके बॉडी पे अलग ही इफेक्ट्स दिखते हैं। यस, इट इज हेल्पफुल, बट इसमें बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी when you are trying out any of these cyclical ketogenic diets. The next is the targeted ketogenic diets. Targeted ketogenic diets is one which is used mostly by players and bodybuilders. What happens in this is they are taking slightly more carbs, 5 ग्राम से ज्यादा लेते हैं, 5 से 10 से ज्यादा लेते हैं। anywhere between 10 to 15% of your total calories come from carbs, बट उसमें से 2 से 20-30 ग्राम जो होते हैं वो आपके वर्कआउट के आसपास लेते हैं ना। इसमें क्या होता है कि जो वर्कआउट करते हैं उस वक्त उनको अगर थकान महसूस नहीं होती, और फिर उनको उसका हेल्प होता है कि उनका फैट बर्न हो और उनके मसल्स बढ़े, इसके लिए वो लिया जाता है। एक दूसरा होता है कि जिसको हम लोग हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। इसमें कंपैरेटिवली 20% प्रोटीन्स की जगह 35% लेते हैं। दिस इज अ नियरली नॉर्मल प्रोटीन, ओनली थिंग इज द फैट परसेंटेज इज स्टिल वेरी हाई। इसमें स्टैंडर्ड और हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट्स ज्यादातर लेते हैं। द अदर्स व्हिच आर देयर, दे आर बेसिकली ओनली फॉर प्लेयर्स एंड एथलीट्स। सो आपको अगर किसी ने बताया कि कीटोजेनिक डाइट लेना है तो क्यों लेना है, आपको ये पहले तय कीजिए, and then you decide and you take it. You cannot take these diets randomly. Please remember that. You have something, next diet आता है, we have something called as low carb high fat. वही होता है, ये सारे डाइट्स जो है इनमें सभी में लो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा होता है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी अलग चीजें होती है कि परसेंटेजेस अलग अलग होते हैं, या आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसका जो क्वांटिटी है वो अलग है ना। हाई फैट लो कार्ब जो डाइट है ये, तो इसमें आप मीट, फिश, शेलफिश, एग्स, क्योंकि इसके सिवा आपको हाई फैट नहीं आएगा, आप सिर्फ फैट्स नहीं खा सकते। तो आप नॉनवेज ले सकते हो, रेड मीट लेते हो, शेलफिश खाते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स है कि दूध है, पनीर है, इसका इस्तेमाल करते हो, वेजिटेबल्स लेते हैं, नट्स भी लेते हैं, मगर यहाँ पे फ्रूट्स नहीं खाए जाते क्योंकि ये लो कार्ब है, इसलिए फ्रूट्स नहीं खाते, सिर्फ बेरीज खाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, ब्लूबेरी, ये चल जाते हैं, मगर ये बाकी के फ्रूट्स ज्यादातर नहीं खाते क्योंकि ये लो कार्ब डाइट है। इनमें नॉर्मली 20 to
100% ग्राम्स ऑफ कार्ब्स दिए जाते हैं। ये और एक पॉपुलर डाइट है एटकिंस डाइट। ये 1970s में बहुत पॉपुलर था और तभी से ये आज तक चलता रहता है और इसमें काफी वेरिएशंस भी आ गए हैं। तो एटकिंस डाइट बेसिकली ये लो कार्ब डाइट है, मगर इसमें क्या होता है कि वो आप एक पैटर्न के हिसाब से कम करते जाते हैं। इनकी खुद की एक लिस्ट होती है, उस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। इसमें सबसे शुरू में आप बिल्कुल ही कम कार्ब से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आपके जैसे जरूरत, आपका वेट जिस तरह से कम होता है उस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू करते हैं। पहले आप कुछ नट्स लेते हो, ऑयल सीड्स लेते हो, फिर उसके बाद में आप बाकी की चीजें खाना शुरू कर देते हो। इसमें और एक डाइट कहा जाता है जिसको हम लोग इको एटकिंस डाइट कहते हैं। इको एटकिंस डाइट में ये वेजिटेरियन डाइट होता है। इसमें बेसिकली आपको कोई भी ये नहीं मिलता, क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे या मीट नहीं रहता। आप सिर्फ वेजिटेरियन सोर्सेस ही लेते हो। इसमें भी कार्ब्स कम रहते हैं, मगर ये वेजिटेरियन और वीगन डाइट से भी कम रहते हैं। मगर इनमें फैट्स लाने के लिए ये सीड्स का इस्तेमाल करते हैं या नट्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर आप फ्रूट से जैसे कि एवोकाडो है, कोकोनट है, इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसमें इनमें भी 25% आपकी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आती है, 30% फ्रॉम प्रोटीन्स एंड 45% फ्रॉम फैट्स। तो परसेंटेजेस ये जो होती है कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स की, बेसिकली इसी का वेरिएशन है। ये और एक है दुकान डाइट, ये काफी सेलिब्रिटीज ने इस्तेमाल किया हुआ है एंड इसीलिए ये पॉपुलर है। मगर ये अलग है, ये लो प्रोटीन है और हाई प्रोटीन और लो कार्ब फैट है। इस डाइट को पियर दुकान ने पॉपुलराइज किया था। इसमें क्या होता है कि आप हाई फैट की जगह आप हाई प्रोटीन फूड्स खाते हो और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स उस तरह से कम होते हैं। मगर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि आप पैकेज्ड फूड नहीं खाएंगे। कोई भी जो पैकेज में आती है, जो प्रोसेस्ड फूड है, वो नहीं खाया जाता। फ्रेश प्रोड्यूस जो हमारे यहाँ नॉर्मली घर पे बनता है उस तरह से खाते हैं। कोई भी पैकेज जैसे कि आपने कुछ लेके आए बाहर से और वो नहीं खाया जाएगा। और यहाँ पे डेली एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। एनीवेयर बिटवीन 45 मिनट्स टू 1 आवर कम से कम आपने एक्सरसाइज करनी है। दिस इज व्हाट दे से। इनमें भी अलग अलग किस्म के फेजेस होते हैं और इनकी खुद की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से आपको फूड सिलेक्ट करने होते हैं। ये होता है जीरो कार्ब डाइट, कि जिसमें कोई कार्ब्स रहते ही नहीं है या बहुत मिनिमम रहते हैं। इसमें कोई वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि वनस्पति से मिलने वाले, यानी कि कोई फल है या कोई वेजिटेबल्स है, वो कोई खाए नहीं जाते। सिर्फ मीट या मीट प्रोडक्ट्स खाए जाते हैं और उसमें एग्स है या बटर है, ये सारी चीजें खाई जाती है। ये डाइट बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है। हालांकि कुछ लोग ट्राई कर चुके हैं, मगर इस पे कोई स्टडीज नहीं है। देयर इज नो एविडेंस बेस्ड स्टडीज ऑन दिस, सो यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन एनी ऑफ these zero carb diets. So far we were talking about diets which were on a low carb and a high fat basis, except for the Dukan diet which was on a high protein and a Dukan. Similar to this, we also have one diet which is said to be a high protein diet, and that is the zone diet, which was also very popular, especially in Nasik. It was very popular a couple of years back. Now again it is not so much in use. This is another diet which is a paleo diet. Paleo diet इसको स्टोन एज डाइट या केवमैन या एशियन डाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस प्रकार का डाइट
10,000 साल से पहले लोग खाया करते थे। जब कोई भी खेती बाड़ी नहीं करता था, सिर्फ वो हंटर्स थे, शिकारी के तौर पे बाहर जाते थे, उनको कोई शिकार मिलती थी या कहीं पे उनको फल फूल मिलते थे, वो लेके आते थे और वही खाते थे। तो यहाँ पे कोई भी अनाज नहीं खाया जाता है। और ये डाइट जो होता है, इसमें प्रोटीन्स भी खाने की जो है, उसमें मीट नहीं खाया जाता। मीट खाते हैं तो वो रेड मीट नहीं खाया जाता, फिश है या पोल्ट्री है, लीन मीट्स है, उन पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एग्स चलते हैं, फिर आप फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, नट्स एंड रूट्स, मगर यहाँ पे कोई भी ग्रेन्स इस्तेमाल नहीं होते, कोई भी अनाज इस्तेमाल नहीं होता। ये 1970s से पॉपुलर है डाइट, बट मोस्टली इट हैज बिकम मोर पॉपुलर इन द 20th century when a book on paleo diet was published by Dr. Lauren Cordian. इन्होंने एक किताब लिखी पेलियो डाइट करके, और उसको उनके साथ उनके जो सहयोगी थे, डॉक्टर बॉयड ईटन एंड स्टेफन लिंडरबर्ग, उन्होंने उसको पॉपुलराइज किया, और इसीलिए ये काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी भी काफी लोगों का कहना है कि आप अनाज खाते हो तो आपका वेट बढ़ेगा, इसके लिए बिना अनाज के खाना खाओ, ऐसे कहने वाले आज भी बहुत लोग मिलते हैं। हालांकि इसमें भी कोई कमियां हैं, खामियां हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। Now we come to plant-based diet. Plant-based is what? Plant-based are diets which are predominantly obtained from plants, जिनमें ज्यादातर सब्जियां, फल, या तो आपको नेचुरली जहां से पेड़ पौधों से खाना मिले, ऐसे को हम लोग प्लांट बेस्ड कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज है, या काफी अलग अलग किस्म के भी है इनमें। हम लोग जब कहते हैं कि कोई वेजिटेरियन है, तो हमारे इसमें इंडियन कल्चर में वेजिटेरियन होना यानी क्या होना, कि हम लोग वेजिटेरियन है मगर हम लोग दूध चलता है, हमें घी चलते हैं, पनीर दही ये सब चलता है, मगर ये तो फिर भी एनिमल से आता है। तो हम लोग जब वेजिटेरियन फूड की बात कहते हैं, तो हमको उसको भी फर्दर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। वी हैव अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेरियंस। वी हैव गॉट लैक्टो वेजिटेरियंस who only consume milk or dairy products, milk and dairy products like curd and paneer and ghee. We have something called as lacto ovo vegetarian, where you are taking the dairy products but you're also consuming eggs, अंडे और दूध, ये खाने वाले भी जो होते हैं उनको भी वेजिटेरियन कहा जाता है। मगर ये कोई भी मीट नहीं खाते या फिश या सी फूड नहीं खाते, ऐसे लोगों को हम लोग वेजिटेरियन कहते हैं। ये एक किस्म का डेफिनेशन है, ये मेरा कहना नहीं है प्लीज। सेमी वेजिटेरियन जो होते हैं, या उनको हम लोग फ्लेक्सिटेरियन भी कहते हैं, ये उनके डाइट में अंडे, डेयरी ये सब तो खाते हैं, और कभी कभार रेगुलर खाने वालों में से नहीं है, मगर वंस इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स कभी कभार अगर होता है, चांस मिलता है, या अगर खाने की नौबत आती है, तो वो मीट या सी फूड भी खा लेते हैं, तो इनको हम लोग फ्लेक्सिटेरियन कहते हैं। पेस्केटेरियन जो होते हैं वो मीट नहीं खाते, वो फिश खाएंगे, और वो लोग उनको फिश को भी शाक सब्जी कहते हैं। दैट इज जैसे उनका कहना है कि जैसे आप अनाज उगाते हो, वैसे पानी में जो से अनाज मिलता है वो फिश होता है, इसलिए हम लोग फिश खाते हैं या सी फूड खाते हैं, डेयरी फूड खाते हैं, एग्स खाते हैं, मगर वो मीट नहीं खाते, उनको हम लोग पेस्केटेरियन कहते हैं। और एक लास्ट ग्रुप रहता है जो वीगन है। अभी आप में से जो फिटनेस वाले हैं और जिन्होंने गेम चेंजर्स ये देखा है, उसके बाद ये भी सुना था कि विराट कोहली हैज बिकम अ वीगन, या और कोई प्लेयर्स है जो वीगन बने हैं, तो काफी लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है और काफी लोगों ने इसके बारे में जानना चाहा है। इसी के लिए मैं इसके बारे में थोड़ा और बताने वाली हूँ। वीगन यानी क्या? वीगन यानी जो कोई भी एनिमल फूड नहीं खाते। व्हाई डोंट दे टेक वीगन डाइट? उनका कहना है कि वो अलग अलग रीजन के लिए वीगन होते हैं। कुछ लोगों के लिए एथिकल रीजन होता है,
कि नहीं, हमने किसी एनिमल से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हम उनको नहीं दे सकते तो हम उनसे खाना नहीं लेना चाहिए। कोई लोग वीगन बने उनके हेल्थ रीजन के लिए, क्योंकि उनसे परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है, कुछ लोगों का कोई बीमारी होती है तो उसके लिए वो वीगन बने। कुछ लोग एनवायरमेंटल रीजन से कि कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं बढ़ने चाहिए इसलिए वीगन होते हैं। तो अलग अलग रीजंस है, इसमें भी वीगन के अलग अलग टाइप्स है। वीगन जो होते हैं होल फूड वीगन डाइट कहते हैं कि इनके जो डाइट्स रहते हैं वो उनमें सारे अलग अलग किस्म के वो फूड्स खाते हैं, मगर ये सारे वीगन रहते हैं। जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अनाज है, आपके कोई भी दाल है, या नट्स है, सीड्स है, ये सब खा लेंगे। मगर ये तेल इस्तेमाल करेंगे, घी नहीं करेंगे, ये दूध नहीं पिएंगे, नट मिल्क ले लेंगे, इस तरह का इनका डाइट होता है। रॉ फूड वीगन जो होते हैं, रॉ फूड यानी वो बिना पकाया अनाज खाते हैं, उनका खाना बिना पकाया या कम से कम पकाया हुआ। वो 50 डिग्री के ऊपर नहीं पकाते, तो 50 डिग्री के ऊपर आप तो सिर्फ गर्म कर सकते हैं, खाना पका नहीं सकते। तो आपका खाना बिना पकाया होता है, इसलिए उनको रॉ फूड कहते हैं। कुछ लोग होते हैं 80-10-10 ऐसे कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है कि जो डाइट लेते हैं तो वो ज्यादातर रॉ फ्रूट्स और सॉफ्ट ग्रीन्स ही लेते हैं। और इनमें जिसमें फ्रूटेरियंस कहते हैं कि जो ज्यादातर डाइट फ्रूट्स के माध्यम से लेते हैं या तो फिर ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, मगर उनके इसमें फैट कम रहता है, और फैट अगर लेते भी है तो बहुत कम मात्रा में जाता है उनके इसमें नट्स से। एक होता है स्टार्च सॉल्यूशन कहा जाता है, जिनमें वो कुक करते हैं कुछ चीजें कि जो स्टार्चेस है, जैसे कि राइस हो गया या जो स्टार्ची फूड्स है वही पकाते हैं, जैसे पोटैटोज है, यैम है, शकरकंद है। तो इनको कुक करके खाया जाता है। रॉ टिल फोर जो कहने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि शाम के 4 बजे तक सिर्फ बिना पकाया हुआ अनाज खाते हैं, यानी कि सब रॉ खाते हैं। उसके बाद में रात के खाने में अगर लगता है तो वो पका के खाना खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। मगर ये सारा प्लांट बेस्ड ही रहता है। और एक होता है कि जो थ्राइव कहते हैं कि वो लोग खाते तो रॉ फूड ही है, मगर ये कम से कम कुक किया हुआ खाते हैं, समथिंग सिमिलर टू द रॉ फूड। आजकल एक नई ट्रेंड आ गई उनमें, जिनको हम लोग जंक फूड वीगन डाइट कहते हैं। अभी ये जो है ये एकदम इलाइट से है कि जो लोगों को खाना तो सब कुछ है मगर उनको वीगन बनना है। कुछ लोग फैशन के लिए बनते हैं, कुछ लोग और किसी चीज के लिए। पर वो लोग क्या कहते हैं कि खाते प्लांट फूड्स है, बट ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं। जैसे कि मॉक मीट्स है कि वो दिखने में मॉक मीट के जैसे लगता है, नॉनवेज के जैसे लगता है, मगर ये बनता तो है वेजिटेरियन बेस से। तो सोया बेस होता है या तो कोई और बेस बना के उससे मॉक मीट्स बनते हैं। चीजेस है, तो चीज बनाते हैं तो चीज भी वो दूध से बनाने के बजाय वो नट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। फिर डेजर्ट्स है, फ्राइज है, ये सारी चीजें प्रोसेस्ड फूड्स है, और इसीलिए उनको जंक फूड वीगन। ये सिर्फ इलेबरेट मैंने किया था क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। वीगन डाइट पर से इज गुड फॉर सम पीपल हु वांट टू डू इट, बट इनमें हमेशा से कुछ ना कुछ खामियां भी रहती है। एक है डैश डाइट। डैश डाइट जब हम लोग बात करते हैं तो डैश डाइट के बारे में बात करने, तो ये सबसे पहले डैश क्यों चालू किया था, इसका फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सबसे पहले उच्च रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन के लिए ये डाइट बनाया गया था यूएस में। और ये डाइट इसलिए बनाया गया था क्योंकि काफी लोगों में हाइपरटेंशन पाया गया था, तो उनके डाइट में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो उनके डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाई गई थी, और होल ग्रेन्स की पूरे अनाज। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो हम मैदे की जगह आप अगर गेहूं की रोटी खाते हैं या तो रागी की रोटी खाते हो तो वो अच्छा है। और इसमें कम से कम मात्रा में फैट इस्तेमाल होता है, या तो फिर ऑयल घी का इस्तेमाल कम से कम होता है।
इसमें सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जो रेड मीट से आते हैं, जैसे कि रेड मीट से या फुल फैट डेयरी है, कि जहाँ पे आप ऊपर की मलाई के साथ खाते हो, ये सब नहीं चलता। बिना मलाई का दूध लीजिए, बिना मलाई के दूध का इस्तेमाल करके आप अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। दही खा सकते हो, या उससे पनीर बना सकते हो, या चीज भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसमें कम से कम मात्रा के स्निग्धता होनी चाहिए। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डाइट, मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट्स कहा जाता है। वर्ल्ड ओवर डाइट्स में जब रैंकिंग दी गई थी, तो मेडिटेरियन डाइट्स और डैश डाइट को फर्स्ट सेकंड पे हमेशा पाया गया है। So what is exactly a Mediterranean diet? Mediterranean is a region which is around the Mediterranean Sea. Around that, you have got different countries such as Greece and Italy and Spain, France. So people staying over there, what are they eating? That has been incorporated in the diet. मेडिटेरियन सी के आसपास के जो देश है, जैसे कि ग्रीस है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, तो वहां के लोगों का जो खाना है, एक्सक्यूज मी, वहां के लोगों का जो खाना है, वो खाना इसमें किस तरह से खा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करने से आपकी तबीयत किस तरह से अच्छी रहती है, ये कहा जाता है। उनके खाने में कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं रहता कि इतना परसेंटेज खाओ, उतना परसेंटेज खाओ, ऐसे कभी नहीं रहता। पर वो ज्यादातर प्लांट बेस्ड रहता है। उनमें नॉनवेज कम से कम खाया जाता है, और वो जो भी खाते हैं उसमें फिश ज्यादातर खाया जाता है। बाकी के जो नॉनवेज है, रेड मीट से, वो कम होते हैं। उनके डाइट्स में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत होते हैं, लेग्यूम्स यानी अनाज, अंकुरित अनाज जो होता है उनका यूज ज्यादा होता है। फल बहुत खाते हैं। उनके यहाँ डेजर्ट के तौर पे कोई स्वीट डिश बनाने की जगह फल खाने में और फल और चीज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। उनके इसमें जो फैट्स यूज किए जाते हैं, या तो वो सारे हार्ट हेल्दी होते हैं। जैसे कि ऑलिव ऑयल वहां पे ज्यादातर इस्तेमाल होता है। बेसिकली वहां पे ऑलिव बनते हैं, इसलिए ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। और इनमें प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं कि शक्कर डालना, या तो रिफाइन करके उसमें से ब्रांड निकालना, ऐसी कोई चीजें नहीं की जाती। कम से कम प्रोसेस्ड फ्रेशली कुक्ड फूड ये खाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो है फल और सब्जियां। फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है या सी फूड है, वो मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं। ऐसे नहीं कि मीट और स्वीट्स खाते नहीं है, पर बहुत कम खाया जाता है और ओकेजनली होता है। और इसमें एक स्पेसिफिक बात इस डाइट की ये है कि यहाँ पे एम्फोसिस दिया जाता है कि एक साथ मिल के खाओ। यहाँ पे उनका ये होता है कि फैमिली ने एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। इटालियंस हो या ग्रीक हो, इनमें हमेशा रहता है कि फैमिली मील्स होने चाहिए। सो एक साथ बैठ के खाना खाना, शेयरिंग करना, ये इस पे स्ट्रेस किया जाता है। इसका एक फायदा ये होता है कि हम लोग जब एक साथ खाते हैं, इस पे जब एम्फोसाइज करते हैं कि एक साथ खाना खाते हैं, तो हमारी जो परेशानियां हैं वो भी कम होती है, स्ट्रेस कम करने में हेल्प होता है। और एक है कि उसमें ये भी है कि आप कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी उसमें मेंशन किया है कि आपने फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड along with the diet. That is one of the crux of the Mediterranean diet. Now, before we go on to talk about intermittent diet, I would like to just tell you what were the pros and cons of these diets. See, जब भी आप लो कार्ब डाइट्स लेते हो, तो लो कार्ब डाइट्स लेने के फायदे क्या है, और उससे आपको खामियां क्या हो सकती है। तो ये सभी लोगों के लिए नहीं है। सबसे पहले
जब भी आपकी बॉडी ज्यादा फैट इस्तेमाल करती है तो आपको कुछ तकलीफें होती है, तो वो आपको समझ लेनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप डाइट लेते हो तो किसी जानकार से आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए और फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ अ कीटो डाइट और अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट विदाउट कंसल्टिंग समबडी, क्योंकि अगर आपकी शुगर एकदम से लो हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आपको इसकी तकलीफें बहुत होती है और तुरंत शायद ना हो, बाद में आपको लॉन्ग लास्टिंग है। जिन लोगों की पैनक्रियाज अफेक्टेड है, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है, इन लोगों ने कोई भी हाई प्रोटीन या लो कार्ब डाइट या हाई फैट डाइट ये लेने के पहले, लिवर की जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, ये सारे डाइट्स फॉलो करने के लिए आपको किसी डाइटिशियन और डॉक्टर दोनों से कल सलाह लेने की जरूरत होती है, नहीं तो यू विल लैंड अप विथ मोर प्रॉब्लम्स देन व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ विथ। आपकी परेशानियां मत बढ़ाइए उस। हाँ, आप वेजिटेरियन डाइट है, मेडिटेरियन डाइट है, डैश डाइट है, इनको आप आसानी से आपके डाइट को में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप उसको आपके रेगुलर रूटीन में लाना बहुत आसान होता है। तो ये डाइट्स करने में आप शायद अगर पढ़ के भी करना की कोशिश करें तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, पर फिर भी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आप 50 के अबाव हो, अगर आपको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या ऐसे कोई भी चीजें हैं, तो प्लीज कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले ठीक से सलाह लेना बहुत जरूरी है। Now we come to something which is very popular nowadays, intermittent fasting. आजकल है ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम नहीं खाएंगे, तो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं खाना, तो पूछते हैं कि दीक्षित हो या दिवेकर हो। दिस काइंड ऑफ जोक हो गया है ये, कि आप कौन सी प्रणाली के हो, कि किस तरह से खाना खाते हो। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये जो चीज है, ये कोई नई नहीं है। जो हमारे यहाँ दीक्षित डाइट करके पॉपुलर है, ये नई नहीं है। हमारे यहाँ कुछ सालों पहले श्रीकांत जिचकर ने भी यही प्रोपोगेट करने की कोशिश की थी, हालांकि उनका जल्दी देहांत होने के कारण ये सारे लोगों तक नहीं पहुंचा था। अभी भी ये काफी तरह से पॉपुलर है। अगर आप देखते जाओगे तो इसके कुछ टाइप्स है जो हमारे घरों में सालों से चलते हैं, पीढ़ियों से चलते आए हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ईट स्टॉप ईट, हम कहीं ना कभी तो भी खाना नहीं खाते, ऐसे भी होते हैं कुछ। अगर आपके घर में दादा दादियां हैं तो वो होंगे कि जो नहीं खाते। सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ डाइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, दिस इज व्हाट is often said. इसमें भी काफी टाइप्स हैं। 16 18 आवर इंटरमिटेंट मेथड, फास्ट डाइट मेथड है, ईट स्टॉप ईट मेथड है, अल्टरनेट डे फास्ट है, वॉरियर डाइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि जब आप साइकिल में खाते हो, कि कुछ घंटों में आपने खाना है और कुछ घंटे आपने बिल्कुल नहीं खाना। इस तरह से जब हम लोग कहते हैं तो उसको हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। इसमें ये कहीं कुछ नहीं कहा जाता कि आपने क्या खाना है। हालांकि हेल्दी खाना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी खा लो, पर हाँ ये जरूर बताया जाता है कि आपने कब खाना है। सो व्हेन इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट में इट इज एक्सपेक्टेड कि आप हेल्दी खाओगे, ऐसे नहीं कि आपने जब भी कुछ खाना है वो तल के खाओगे। नहीं तो मराठी में एक कहावत है, एकादशी दुप्पट खाशी, कि एकादशी भी है और आप उसके हिसाब से व्रत रखने के बावजूद आप ज्यादा खाते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप जब खाते हो तो ये एक्चुअली डाइट ना होके एक ईटिंग पैटर्न है या ईटिंग लाइफस्टाइल है जो आप फॉलो करना चाहते हो। सो सबसे पहले है 16-8 मेथड। 16-8 मेथड यानी क्या? इसमें ये होता है कि आप 16 घंटे तक कुछ ना खाओ और आपको जो कुछ भी खाना है वो 8 घंटे के विंडो में खा लो। अभी इसमें क्या होता है कि आप शाम का खाना जल्दी खा लो और सुबह कुछ ना खा के डायरेक्टली लंच करो, ब्रेकफास्ट स्किप कर दो।
तो क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली 16 घंटे का आपका व्रत हो जाता है, और 8 घंटे में जो आप 1 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक या 12 से 8 या 1 से 9 बजे तक का जो विंडो रहती है, तब आप 2 बार खाइए, चाहे तो आप लंच और डिनर कीजिए या लंच स्नैक्स डिनर कीजिए, आपकी मर्जी। दिस इज व्हाट इज जनरली सेड। मगर ये नहीं है कि आप 8 घंटे में खाना खाने वाले हो तो ऐसे खा लो कि जैसे कल ना हो। आप जो खाते हो तो आप लिमिटेड खाइए, जैसे आपको लगता है वैसे खाइए। तो ये एक मेथड है, इसको लीन गेन्स भी कहा जाता है। और लीन गेन्स प्रोटोकॉल इस तरह कहते हैं कि इसमें से आपको लीन मसल बढ़ता है, इसीलिए इसको लीन गेन्स कहा जाता है। ये है फास्ट डाइट मेथड। इसमें ऐसे होता है कि आप 5 दिन तक नॉर्मल खाइए, और हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं कि आप कम खाइए या फास्टिंग कीजिए। कुछ लोग पूरा फास्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 500 से 600 कैलोरीज तक खा लेते हैं, या तो कुछ मील्स पी लेते हैं, या एक आधा फल खा लिया। तो इस किस्म का फास्टिंग होता है इसमें। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फास्ट डाइट, जैसे कि व्रत का डाइट है, इस तरह से कहा जाता है। दूसरा मेथड है ईट स्टॉप ईट। इसमें क्या होता है कि आपको 1-2 बार हफ्ते में 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है, या तो फिर जिससे कैलोरीज ना मिले इस तरह से, जैसे कि ग्रीन टी हुआ, या ऐसे कुछ पतला छाछ है। तो इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। ये सारे जो है ये मेथड्स है, ये किसी फिटनेस एक्सपर्ट ने, जैसे कि ये मेथड है ब्रैड पिलॉन, इन्होंने पॉपुलर किया हुआ है। मगर ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 24 घंटे कुछ ना खाने के बाद। हफ्ते में एक आध दिन ठीक है, बट हफ्ते में 2-3 बार जब होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा करना नहीं। कुछ लोग करते हैं, अगर आपके यहाँ दादी है या माँ है तो आपने देखा होगा कि वो लोग फास्टिंग करते तो कुछ खाते ही नहीं है, तो उनका ऑटोमेटिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। अल्टरनेट डे फास्ट कहते हैं, हर दूसरे दिन आप 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ कुछ कैलोरीज खाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपने कुछ थोड़े कैलोरीज ले लिए। मगर इसमें भी बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि ये लोग चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं, तो इससे एसिडिटी बढ़ती है या उनको तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करते भी है तो आपने ठीक तरह से करना चाहिए। क्या होता है इसमें कि जिस दिन आप खाते हैं उस दिन अच्छा लगता है, मगर हफ्ते में एक बार आपने फास्ट रख लिया ठीक है। बार बार अगर आप 24 घंटे तक कुछ खाते नहीं हो तो इसका आपको साइकोलॉजिकल तकलीफ होने लगती है, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो कहीं किसी से मिलते हैं, कहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं ये भी नहीं पता चलता। और हर बार कोई मिलता है तो आप कहोगे कि मेरा फास्ट है, तो सब लोग कुछ लोग चिढ़ाने लगते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी वायबल इन द नॉर्मल स्टेट। हमेशा से नहीं तो लोग चिढ़ाने लगते हैं, इसीलिए काफी लोग इसको पसंद नहीं करते फॉलो करना। वॉरियर डाइट जो है ये जो है इसमें क्या कहा जाता है कि आप पूरे दिन भर कुछ खाते नहीं है, थोड़ा सा कुछ फल या कोई सब्जी है जैसे कैरेट है, या आप रॉ कुछ है थोड़ा सा खा लेते हैं, और एक रात को पेट भर के खाना खाते हैं। ये काफी बार ऐसे होता है कि हम दिन भर कुछ ना खा के शाम के या रात को 4 घंटों के बीच में जो खाना है खा लेते हैं। जो लोग बहुत बिजी होते हैं उनका भी ऐसे कभी कभी होता है, इसको वॉरियर डाइट कहते हैं। बट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल डाइट और इट्स नॉट इवन वेरी यूजफुल, सो दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल इज नॉट वेरी यूजफुल ना। ये जो लाइफस्टाइल्स है या डाइट्स के बारे में हमने बात की है, इसके सिवा भी बहुत सारे डाइट्स है जो आजकल कॉमनली अभी नया नया बहुत सुनने को आता है कि बुलेट प्रूफ कॉफी पी लो। बटर एंड कॉफी एंड एमसीटीज डोंट यूजुअली आर नॉट वेरी गुड कॉम्बिनेशन अर्ली मॉर्निंग लेने के लिए। हाँ, कोई बॉडी बिल्डर है या कोई कुछ स्पेसिफिकली एम रख के कर रहा है तो उसके लिए ठीक है। मगर एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, ये जो नॉर्मली आपका डाइट अच्छी तरह से रखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ मैं। तो मील प्लानिंग या फूड सिलेक्शन किस तरह से करनी चाहिए।
अगर एक हाउसवाइफ है या कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक रिटायर्ड पर्सन है, उसके डाइट में किस तरह से डाइट होने चाहिए। आप फिटनेस तो करते हो मगर उसके साथ थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रखते हो तो आपके डाइट्स अच्छे हो सकते हैं। सो फूड सिलेक्शन करते समय आप प्रोटीन्स ले सकते हो। प्रोटीन्स में अगर आप एनिमल फूड्स खाते हो तो आप नॉनवेज खाते हो तो मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स ये लग सकते हो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, या तो प्लांट फूड्स भी है जैसे कि लेग्यूम्स है, पल्सेस है, दाल्स है, नट्स, ऑयल सीड्स। अब जिस तरह से पनीर खाते हैं उस तरह से टोफू भी इस्तेमाल कर सकते हो। फैट्स जब हम लोग बात करते हो तो घी, बटर, ऑयल्स ये हमेशा आते हैं। चीज भी है, पिकल्स भी है, नट्स, इस इन सबको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल रोज के डाइट में करने में कोई दिक्कत नहीं। मगर आप एकदम से टोटली बिना खाए रहोगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके जॉइंट्स में तकलीफ होना शुरू होती है। कुछ हार्मोन्स आपके तैयार ठीक तरह से नहीं होंगे। अगर आप टोटली फैट अवॉइड करोगे, ज्यादा खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सो आपको एक बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्रेन मिलेट्स यानी आपके जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स है, जैसे रागी है, ज्वार है, या आप बाजरे की बात करते हो, ये सब है, वरई है। तो ये चीजें जो है इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओट्स है, किनोआ है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। विटामिन और मिनरल्स जो है ये सारे तीनों ग्रुप से मिलते हैं। हालांकि इसमें सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल करोगे, नट्स एंड ऑयल सीड्स यूज करोगे तो सारे विटामिन और मिनरल्स अपने आप ही आपके डाइट में आ जाएंगे। तो एक पूरी बैलेंस्ड डाइट करनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर नॉर्मल हम लोग खाना देखते हैं तो किसी से पूछते हैं तो बोलते हैं हमने रोटी सब्जी खाई। सिर्फ रोटी सब्जी नहीं, अगर आपने रोटी सब्जी खाई है तो उसके साथ कोई प्रोटीन भी होना चाहिए, जैसे कि दाल है, पनीर है, या नॉनवेज है कुछ। अगर आपने रोटी और उसके साथ अगर आपने स्प्राउट्स ले लिए या उसल या पनीर ले लिया तो उसके साथ काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग सब्जी नहीं बनाते। मगर अगर आप सब्जी नहीं बनाते तो आप उसके साथ सलाद का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई फल खा सकते हो। ये कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। एक थर्ड एग्जांपल जो हम लोग काफी बार होते हैं कि इडली चटनी या इडली सांभर खा लेते हैं। इडली चटनी, इडली सांभर खा लिया, आपको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल गए मगर आपको सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते। तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते, तो उसके साथ सलाद अच्छा नहीं लगेगा तो आप फ्रूट खा सकते हो। तो ये चीजें हैं जो अगर आप दिमाग में रखते हो कि एक कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ये बहुत है। अभी आपको एक सर्विंग अगर कहीं पढ़ते हो कि एक सर्विंग लेना है तो एक सर्विंग कितना होता है, तो एक हाथ भर के एक पाम देखोगे तो उतना होता है कि आपके प्रोटीन्स है। एक फिस्ट यानी एक मुट्ठी अगर बना लेते तो वो आपके ये हो जाता है, वेजिटेबल्स का हो जाता है। एक कप है, जैसे हाथ में आपने ले लिए ग्रेन्स ले लिए तो उसके एक सर्विंग कार्ब्स हो जाता है जो 30 ग्राम्स हम लोग कहते हैं। एक थम यानी एक अंगूठे के इतना अगर आप लेते हो तो बटर लिया या घी लिया तो वो एक सर्विंग आपका फैट का हो जाता है। अगर आप कहते हो कि आपकी थाली किस तरह से होनी चाहिए तो हम कहेंगे इस तरह से होनी चाहिए, हेल्दी ईटिंग प्लेट जिसको कहते हैं। आपने अगर थाली में अगर 4 भाग बना भी लिए तो एक चौथाई हिस्सा ही आपके ग्रेन्स होने चाहिए। एक चौथाई यानी बहुत कम हो गए आपके और एक चौथाई आपके प्रोटीन्स होने चाहिए। आधी प्लेट आपकी फल और सब्जियों से भरी होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाने बैठोगे तो देख लेना हमारे डाइट में नॉर्मली आधा राइस और रोटी ऐसे रहते हैं। हम लोग ज्यादातर चावल और रोटी का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां और फल बहुत कम खाते हैं। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ पानी की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। ऑयल्स इस्तेमाल करते समय हेल्दी ऑयल्स इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी है स्टे हेल्दी। असेंडर्स होने के कारण आप सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको फिटनेस की कितना इम्पोर्टेंस है।
और आपने फिजिकली फिट रहना चाहिए, बट यस यू नीड टू स्टे एक्टिव। हमेशा से याद रखिए कि हर मील में सारे न्यूट्रिएंट्स आपके आने चाहिए। उतनी ही जरूरत चीज है कि आपके डाइट में फ्लूइड्स होने चाहिए। पानी हो, चाहे सूप लीजिए, चाहे बटर लीजिए, बटर मिल्क लीजिए, सॉरी, या दूध पीजिए, कुछ भी आना चाहिए फ्लूइड्स। आप जो सिलेक्शन करते हो वो हेल्दी सोर्सेस से हो। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी खा लिया। जब मुझे खाना है तो मैं अच्छे हेल्दी सोर्स से खाना चाहूंगी। खाना खाने समय आपकी जिस तरह की लाइफस्टाइल है उस हिसाब से आप 2-3 घंटे के बाद भी खा सकते हो, या 3-4 मील्स ही ले सकते हो, या 2 बार ही खा सकते हो। ये आपका चॉइस होता है, ये आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज करना है। हवेवर, कोई भी मील या फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो किन्होंने नहीं करनी है? तो जो प्रेग्नेंट है, जो लैक्टेटिंग है, या बच्चे को दूध पिला रही है अपना, या तो जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। अगर आप डायबिटिक है तो डॉक्टर की सलाह से या डाइटिशियन की सलाह से ही आप अपने डाइट की एक आधा मील मिस कीजिए या फास्टिंग कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपकी ग्लूकोज फ्लक्चुएट होकर आपको उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। This is very important. What works for one person may not work for the next. So the best diet for you is the one you can stick to. काफी बार ऐसे होता है, डाइट चालू करते हैं, डाइट सोचते हैं, सबका दिमाग में क्या होता है, अरे मुझे ये नहीं खाने को मिलेगा, वो खाने को नहीं मिलेगा। ये ऐसे नहीं होता। डाइट यानी चूजिंग द राइट फूड्स, दैट इज व्हाट इज अ डाइट। Diet does not mean eliminating foods, it means basically choosing the best sources for you. Or what are the just best sources for you? What is locally available, what is seasonal, and what you can consume, and which is less processed, less sugary. That is what is healthy, and that is what should be the best for you. So, a takeaway from this session: good nutrition and regular exercise are the cornerstones for good health and optimal energy. And so, please follow this. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was really informative session. I'm sure I got to learn a lot, and there are others who will take away many things from this session. Since we are short on time, I will take 2-3 questions. Before I go on to the chat questions from chat, I would ask if there is question from someone, they can ask and unmute and ask. Okay, I'll ask one question. So since you have mentioned multiple diets, so what is one diet which you would recommend when someone is just starting his weight loss journey? In that case, I would recommend, you start decreasing around somewhere around 500 calories from your day. Agar, if you have to decrease, what you can do is, you can start decreasing the amount of carbohydrates. Like जैसे अगर आप 2 चपाती खा रहे हो तो उसमें से सिर्फ आधी कम करो या 1/4 कम करना शुरू कर दो. And then you go on to start selecting the right amount of foods. This is something which we regularly recommend for starters or beginners. ऐसा कोई डाइट नहीं है कि जो आप टोटली फॉलो करो. दीज आर ऑल अगर आप डाइटिशियन से पूछे तो काफी डाइटिशियन बोलेंगे इनको फैट डाइट्स के नाम से पुकारते हैं. तो हमारे जो आपकी जो ट्रेडिशनल डाइट है वही रखकर अगर आप उसमें से थोड़ा राइस या थोड़ी चपाती कम करते, थोड़े पोटैटोज कम करते, शुगर थोड़ा अवॉइड करते, तो आपकी कैलोरीज तुरंत कम हो जाती है. उससे आपका वेट कंट्रोल होता है. मगर आप डाइट किस लिए कर रहे हो ये बहुत जरूरी है. अगर आप लीन मास बढ़ा रहे हो तो आप वहां पे थोड़ा आपके प्रोटीन्स चेक करके प्रोटीन्स बढ़ा सकते हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर सकते हो. दिस इज विल बी डिफरेंट. वी हैव अ सेइंग कि आप जिस तरह से कपड़े सिलाते हो अपने साइज के, उस तरह से आपका खुद का डाइट प्लान करके लीजिए किसी से कि जो आपके लिए ठीक है. क्योंकि आपके जैसे हमने कहा शुरू में, आपकी हाइट वेट सब चेंज होती है, उस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है. But a basic routine is decrease the calories. Okay, understood. We will take a couple of questions from the chat. We also have some questions from Instagram poll. So the first question is from Hemant.
He asks which fruit and what quality to be taken daily for a person of 45 to 55 age. See, which fruit? Seasonal fruit. जो कोई भी Okay. फ्रूट सीजन में है, that is the best fruit. कितना खाना चाहिए? एक सर्विंग. How much is one serving? It is like it's a medium size fruit. आपने पूरा फल खाना है. अगर मैं सेब खाती हूँ तो मुझे पूरा फल सेब खाना चाहिए. ऐसा नहीं. हमारे घरों में क्या होता है, हम लोग मम्मी एक सेब लाती है, उसके 4 पीसेस करते हैं, हर एक हम लोग एक एक पीस खाते हैं. ऐसे नहीं. So whatever you have, and you're not supposed to eat one fruit, you should be consuming 2 fruits at least. दो फलों में क्या है, एक होना चाहिए जो साइट्रस फ्रूट है सीजन का, जिसमें से आपको विटामिन सी और विटामिन ए ज्यादा मिलता है, तो वो सुबह के वक्त खा लीजिए, because that will increase your iron absorption also. और दोपहर के वक्त यानी somewhere around 4 o'clock or something, if you have to take a fruit, then you can take some other fruit which is a seasonal fruit. Got it. So I hope this answered. Next question we have is from Ananya. She asks, is microwave food healthy? Microwave food healthy in the sense, cooking in microwave is not bad. हम लोग कुकिंग करते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ रीहीटिंग करते हैं. तो जब हम लोग रीहीटिंग करते हैं तो आप कितने बार रीहीट करते हो, इस पे इम्पोर्टेंट है कि how often do you reheat. Don't reheat too much, then it's okay. Another thing is, after microwaving, if you remove the food outside and keep it for a couple of minutes and then consume, that is how most of us take. So it's perfectly healthy. Otherwise, microwave ovens wouldn't have been here for so long. Right. Understood. Next question we have from Mansi. She asks, what is the best source of B12 for vegetarians? Vegetarians के लिए B12 के sources ही नहीं है. It's colostrum. That is the first milk which is obtained after the baby is delivered by the animals. मराठीत त्याला आपण खरवस म्हणतो. खरवस करताना चिकाचं दूध येतं. So that is what we get the B12 from. If you can access to it, or you can take that milk and then use in different ways. That is one source. The others, there are hardly any. Milk, if you have to drink, you need to really not heat it, have it freshly and in larger quantity, then only you could get. Right. Okay, understood. We'll take one question from Instagram, which we have gotten. And if someone have any question, any personal question, anything you wish to ask, then they can unmute and ask. So the question which we have gotten from Instagram is, what foods can I eat to help and which will keep me full for longer? Excuse me, can you just So, repeat it? yeah, I'll explain the question. He meant that we often do fasting or skip breakfast or skip foods for a longer duration. So what is that food which will help him keep full for longer duration? See, to keep somebody full for a longer time, eating proteins does help you. So if you are eating a few nuts, but soak the nuts and have them. If you have some nuts or something which is rich in protein, it will keep you fuller for a longer time, especially when you're fasting and all. All right. So that is it for question. Okay, we have one more question from the chat. Can you please guide on healthy breakfast for routine Guide on life? healthy breakfast for routine life. Okay, basically breakfast is something which, if a person is a vegetarian, then it will be slightly different, and somebody who's non-vegetarian, then they can have eggs in the morning along with chapati or something, or our traditional breakfast which are there, like idli chutney hai, that is good enough. Then having your upma with vegetables, that is good. Having thali pit, that is good with vegetables again. Then you can have, basically, if I have to incorporate things like a few vegetable or a fruit, some protein and some carbohydrate, then it becomes very good breakfast. Like अगर पोहा बनाती हूँ तो पोहे में भी मैं थोड़े proteins के लिए उसमें groundnuts and peas डाल के कुछ सब्जियां डालती हूँ, then it becomes
or I can have some source of proteins along with it. That will also make it good. If I'm having a normal paratha, प्लेन पराठा भी है, तो प्लेन पराठा के साथ मैं सब्जी खा सकती हूँ. अगर वेजिटेबल पराठा है तो उसके साथ कर्ड्स खा लिए तो भी अच्छा है. इडली डोसा है तो देन वी हैव गॉट वी मेक मूंग का डोसा बनाते हैं. पेसरट्टू है या मूंग धिरडा आपण म्हणतो. So those things are good enough to have in the breakfast also. But see that you have a fruit also along with it, and some amount of protein should be there. So even having sprouts in the morning is good enough. If you able to add some tomatoes and maybe a cucumber or something, carrots to it, so it will become more fuller, and you can have that also. Understood. So people are thanking you in the chat. I am pretty Thank you sure so much. it was very useful. It was very informative session for me. I got to learn a lot of things. I wasn't aware of multiple diets which you mentioned, so I'm going to learn more about it in Google. So yeah, thank you so much, and we'll end this session here. Before we end, first of all, thank you so much, ma'am, for agreeing to Oh, this. you're welcome. Anytime. Yeah, and thank you everyone for all those who have joined this session and are with us till now. Um, Before I end, we have a couple of announcements to make. So our app is launched on Play Store, and we have also new features coming up. So you can check out our app on Play Store. We have also pasted the link in chat. You can also follow us on Instagram, Facebook, Twitter, and join our WhatsApp community. So that's it. I am sure there are a lot more sessions lined up, just like how this one was, and there is a lot more to learn ahead. So yeah, thank you so much everyone for joining in. We also have a feedback form. So I will paste the link in the chat section, and you all can fill that form.